जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं ये डेली रिकॉर्ड करता हूँ, तो कभी भी कोई क्लास आपको लगे वापस रिवीजन वगैरह करना है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको एक स्पेशल लिंक शेयर करूँगा और उससे फिर आप उस दिन की क्लास को देख पाएंगे दोबारा से। अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट चैप्टर में एक तो हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आफ्टर दैट वी स्टडीड द डिस्टिंक्शन बिटवीन the microeconomics and macroeconomics and how many points we discussed of this. I think 8 points were there. Yeah, exactly. Total 8 points we discussed about the difference between microeconomics and macroeconomics. Okay, let us continue further. अच्छा, यहाँ तक अगर किसी के माइंड में कोई डाउट है तो आप अपना माइक इनेबल करके पूछ सकते हैं। Any query regarding the difference between microeconomics and macroeconomics? अगर ये जो डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ा था इसमें किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत तो आपको रिकॉल करवा देता हूँ। लाइक इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी एट अ स्मॉल लेवल and in the macroeconomics we study at a large level, at economy as a whole. In the microeconomics is also known as partial equilibrium, and macroeconomics is known as general equilibrium. The microeconomic variables are individual demand, individual supply, while macroeconomic variables are aggregate demand, aggregate supply. While studying microeconomics, we assume macroeconomic variables to be constant, while studying macroeconomics, microeconomic variables are assumed to be constant. And the last point was that micro macro paradox, which states that a thing or a concept which is important, which is significant at the microeconomic level may not be of relevance, may not be of significance at the macroeconomic level. And on the other side, that is the concept which is important at the macroeconomic level, at the economy as a whole, at the level of an economy as a whole, may not be that much important at the level of an individual. So this is known as micro macro paradox. Clear? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्कोप एंड आई थिंक ये टॉपिक भी हमने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, सिग्निफिकेंस पढ़ लिया था हमने। चलिए कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दैट सिग्निफिकेंस में हम इम्पोर्टेंस और नीड को लेते हैं। पढ़ा था ना? याद है नहीं याद है? कोई तो बोलो। यस सर। बाकी दोनों पूजा एंड तन्वी को याद ही नहीं है कि ये टॉपिक पढ़ाया था। बोल दिया करो। यस सर, याद है। हाँ, बोल दिया करो कभी कभार। चलिए फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। इन द स्कोप, व्हाई डू वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स? उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, या जब भी हम कभी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, मैक्रो इन द रियल वर्ल्ड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को जब हम यू कैन से रिसर्च करते हैं, व्हाई डू वी गो under the research for the macroeconomic variables? Why do we go into the study of income, employment, and output? Why do we study the national income? Why do we study the aggregate demand and all? Macroeconomic variables को हम क्यों स्टडी करते हैं, उसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो फर्स्ट इज estimation of national income and related aggregates is possible only with the help of macroeconomics. The theory of employment, or the you can say the solution to remove unemployment, or the way how to combat with unemployment will be studied, or will be we can get the solution
in the macroeconomics. The theory of money, which mainly includes the theory of money supply. What does money supply do in the economy? Money supply may increase the demand in the economy, and money supply may reduce the demand in the economy. Money supply may bring inflation in the economy, and money supply may bring deflation, that is general price fall, may bring deflation in the economy. Money supply can increase the consumption of a consumer, and money supply can also reduce the consumption. But how does this money supply work, and what does the money supply mean? That we will study in the chapter of money and banking at a later part. The another reason why do we study macroeconomics is theory of general price rise, or the general price level, that is inflationary gap and deflationary gap, is studied under macroeconomics. Then the role of government and the government budget. How does government take decision for the welfare of the society and the economy? That is to be studied through macroeconomics. And the last one, that is exchange rate and the balance of payments. मैंने आपको बताया था what does balance of payment mean. जैसे एक इंडिविजुअल अपनी बैलेंस शीट बनाता है तो उसे हम बैलेंस शीट ही कहते हैं. जब पार्टनर अपनी बैलेंस शीट बनाता है उसे भी हम बैलेंस शीट कहते हैं. कंपनी जब बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की तो उसको भी हम बैलेंस शीट ही कहते हैं. But when a balance sheet is prepared for the whole country, for an economy, that balance sheet is known as balance of payments. Similar to balance sheet, like balance sheet includes assets and liabilities of an individual or a partnership or a company. Similarly, balance of payment is also a statement of an economy of a country, which comprises of the assets and the obligations, that is liabilities of that country, of that economy. ठीक है, अब आगे आते हैं सिग्निफिकेंस की. अगर हम बात करें, so how can we get the description of an economy? A description of an economy can be achieved, can be acquired through the help of macroeconomic variables only, or macroeconomics only. Estimation of national income, study of unemployment, government budget, all these things reveals various kinds of description about the economy, whether our economy is a developed or underdeveloped or a developing, whether our economy is based on agriculture or based on manufacturing industry or based on service sector, whether our economy is a socialist, capitalist, or a mixed one. All kind of description about the economy can be achieved through the macroeconomics. This is the first significance. Second is roadmap of growth and development, whether an economy is growing or not, whether the economy is developing or not. How can it be known? If GDP is raising, if GDP is rising, it indicates the growth of an economy. अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. चैप्टर नंबर 2 and 3 हमने पढ़ा था. दैट इज चैप्टर नंबर 3 and 4, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग. जीडीपी कैलकुलेट करना हमने सीखा था. और हमने और एक चीज सीखी थी उसमें, जीडीपी एट नॉमिनल वैल्यू एंड जीडीपी एट करंट प्राइसेस, है ना. जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी एट करंट प्राइसेस, दो तरह की जीडीपी हमने कैलकुलेट करना देखा था. तो आप में से कौन अभी तक नहीं बोला? तन्वी से पूछते हैं क्वेश्चन. तन्वी, हमने दो तरह की जीडीपी पढ़ी थी. एक था रियल जीडीपी विच मींस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, और दूसरा था नॉमिनल जीडीपी, दैट इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस. सो आउट ऑफ दीज टू, that is GDP at constant prices and GDP at current prices, which is a better indicator of economic growth and prosperity? Which GDP at real GDP at current price or GDP at constant price, which GDP shows the growth of the economy? Tanvi, GDP at current price. louder. आपने जो भी आंसर दिया GDP मुझे at सुनाई नहीं आया, current. वापस बोलिए.
The GDP at current price. जी, क्वेश्चन पासेस टू पूजा। GDP at constant price. ये तो मैच टाई हो गया। यस, क्वेश्चन पासेस टू शिल्पा। GDP at constant price. ओके, मेजॉरिटी विंस। सो जीडीपी एट करंट प्राइसेस का तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी अगर हम करंट प्राइसेस के लें तो उसमें जीडीपी इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू प्राइसेस ऑल्सो। हो सकता है आपका जो प्रोडक्शन था वो तो कम हुआ था, लेकिन मार्केट में प्राइसेस बढ़ी थी, उसकी वजह से आपका वो जीडीपी ज्यादा शो हो रहा है। लेकिन कांस्टेंट प्राइसेस पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस पे हम प्राइसेस को तो फिक्स कर देते हैं, लास्ट ईयर की प्राइस और इस ईयर की प्राइस दोनों को सेम ले लेते हैं। तो फिर अगर कुछ इंक्रीज शो होता है जीडीपी में तो सिर्फ वो प्रोडक्शन की वजह से ही शो होगा। सो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। तो वो खैर उसको तो आप उसमें से रिवाइज कर सकते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट को भी रिकॉल कर सकते हैं दैट हाउ द एक मैक्रो इकोनॉमिक्स act as the roadmap of growth and development, because it shows through macroeconomics we can calculate the GDP, and raise in GDP shows the growth and development of an economy. Let us move further. Economic stability, जी ये भी मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। मैंने एक अच्छा सा डायग्राम बनाया था आप लोगों के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, डायग्राम का नाम बताएगा मुझे कोई? मैंने जो डायग्राम बनाया था, आप में से कौन है जिसने वो डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ किया? पहले तो वो बताइए मुझे। अगर नहीं बोलेंगे मैं समझूंगा किसी ने भी ड्रॉ नहीं किया। वाओ, सो इंटेलिजेंट। शिल्पा, आपसे ही उम्मीद नहीं थी। सर लर्न है ना डायग्राम। अच्छा, आपको अच्छी तरह से ध्यान है ऑलरेडी, चलिए कोई बात नहीं। जी पूजा, आपने क्यों नहीं ड्रॉ किया, आप भी बता दो, आपको भी याद है क्या? No, sir. तो फिर ड्रॉ करना चाहिए था ना। चलिए अभी कर लेना। चलिए अब मुझे नाम बोलते जाएंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो, ठीक है? ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें बताइए मुझे ये वाला जो पोजीशन है इसे हम क्या कहेंगे? तन्वी बताइए, बोलो जल्दी से बोलो। कितना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। जी पूजा बताइए मुझे, आप के इसमें जो ये वाला पोजीशन है इसे हम क्या कहेंगे? Deflation. डिप्रेशन। डिफ्लेशन नहीं, डिप्रेशन, ठीक है? ओके जी। शिल्पा, आप मुझे बताएंगे कि इसको एक्चुअली एरो लेते हैं पर वो ज्यादा अच्छा बनेगा। ये वाली जो पोजीशन है ना, इसे हम क्या कहेंगे? रिसेशन। बिल्कुल करेक्ट। तो फिर इसी से पूछते हैं वापस शिल्पा से। नहीं, तन्वी ने एक भी आंसर नहीं दिया। तन्वी बताइए, इस वाली पोजीशन को हम क्या कहेंगे? ये जो अपवर्ड एरो नजर आ रहा है आपको, एक मिनट इसको वापस बनाते हैं, अच्छा नहीं बना। जी तन्वी बताइए, ये जो अपवर्ड एरो नजर आ रहा है इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? बताइए। तन्वी वेट कर रहा हूं मैं। अगर आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होता तो अभी सबके आंसर आ रहे होते मेरे पास में। ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया। डिसअपॉइंटमेंट। जी पूजा आप बताइए, जो अपवर्ड एरो मैंने दिखाया है, कि इस अपवर्ड एरो का आप नाम बता सकते हैं मुझे? Inflation. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो मैंने इस टॉपिक में बताया ही नहीं था आपको। इसको हम बोलते हैं रिकवरी। ठीक है, अभी याद रखिएगा, हर इकोनॉमी में कभी तो बूम पीरियड आता है, कभी डिप्रेशन का पीरियड आता है, कभी रिसेशन होता है और कभी रिकवरी होता है। हम बूम किसे कहते हैं? बूम इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, अच्छा ये डायग्राम किस चीज का है? ये डायग्राम है ट्रेड साइकिल का। तो
इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो अपर मोस्ट पोजीशन थी इसे मैंने बूम लिखा है, और इस यहाँ पे भी मैं इसको बूम लिख सकता हूँ, और इसके आगे भी जब जब ये इस तरह से एक माउंटेन वाला पीक पोजीशन बनेगा उसको हम बूम पीरियड बोलते हैं। कौन सी बूम का आइडेंटिफिकेशन क्या है? वेयर इन एन इकोनॉमी, ध्यान से सुनना है और इसे माइंड में सेट करना है, नहीं याद रहता है तो लिख लेना है। वेयर इन द इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। क्या वर्ड्स यूज किए मैंने आपके लिए? वेयर इन द इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। Where in an economy the level of income, employment and output, these three are at its peak position, maximum होते हैं जब income, employment and output, this is known as boom period. And on the other side, where in an economy the level of income, employment and output is at its lowest position. लोएस्ट पोजीशन का मतलब है लोगों की बहुत कम इनकम हो, लोगों के में कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन ज्यादा हो और प्रोडक्शन भी बहुत कम हो। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जब भी एक इकोनॉमी, एक कंट्री डिप्रेशन से रिकवर होने की कोशिश करता है, यानी कि जब कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, जब लोगों की इनकम बढ़ने लगती है, कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ने लगता है ना, जब डिप्रेशन से कुछ पोजीशन इंप्रूव होने लगती है तो उसे हम बोलते हैं रिकवरी। तो ये जो अपवर्ड एरो मैंने आपको दिखाया है, दिस अपवर्ड एरो शोज द रिकवरी। और जब बूम से डिप्रेशन की तरफ आने लगते हैं, यानी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, फर्म्स क्लोज होने लगती हैं, फर्म्स क्लोज होंगी तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इनकम भी कम हो जाएगी। तो जब बूम से डिप्रेशन की तरफ इकोनॉमी जाने लगती है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन हैव बीन डिनोटेड बाय द डाउनवर्ड एरो। अपवर्ड एरो है वो रिकवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डाउनवर्ड एरो है वो रिसेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बूम मींस द हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, एंड रिकवरी मींस द लोएस्ट लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब इसका आपको मैं लास्ट एक रियलिस्टिक एग्जांपल रिकॉल करवा देता हूं। ईयर 2008 में स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिरा था, सेंसेक्स बहुत डाउन गया था, और उस समय में ये हुआ था सिचुएशन के बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी, कंट्री में कौन सी सिचुएशन आ गई थी? कंट्री में डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई थी। लेकिन कोई भी इकोनॉमी ना तो बूम पे कभी स्टे कर सकती है, ना ही डिप्रेशन पे स्टे कर सकती है। एवरी इकोनॉमी कीप ऑन मूविंग इन दिस सर्कुलर मैनर कि एक बार बूम आएगा, फिर रिसेशन होगा तो डिप्रेशन तक पहुंच जाएंगे, फिर रिकवरी होगा, वापस बूम आ जाएगा, इस तरह से चलता रहता है। हाउएवर, एक इकोनॉमी चाहती क्या है? एवरी इकोनॉमी यू कैन से expects to achieve the stability in the country। लोगों की मींस एक गवर्नमेंट की या कंट्री की इच्छा तो क्या होती है कि हमारे कंट्री में स्टेबिलिटी की पोजीशन रहे, ना ही बूम हो, ना ही रिसेशन हो, ना ही डिप्रेशन हो, ना ही रिकवरी हो, एक स्टेबल पोजीशन रहे कंट्री में, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। हालांकि वो स्टेबिलिटी रह नहीं पाती है, बूम, रिकवरी, रिसेशन ये सब कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये जो ग्रीन लाइन आपको मैंने स्ट्रेट लाइन शो की है, दिस शोज द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो यही है पॉइंट नंबर 3 सिग्निफिकेंस का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या लिखा है? स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दिस इज अचीव्ड थ्रू प्रोपोर्शनेट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। एंड द फिस्कल पॉलिसी और द बजटरी पॉलिसी विच इज डिसाइडेड बाय द, परसुएडेड बाय द government. So under the this one monetary policy, money supply is controlled, and under the fiscal policy taxations are controlled. ये भी चैप्टर्स हमारे डिटेल में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, बट आपको ध्यान रहना चाहिए दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अंडर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी we work to bring a stability in the economy in the situation that is to remove the situation of boom and depression. And how it can be achieved? It can be achieved through the monetary policy and through the budgetary policy which is also known as fiscal policy. मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार मैं ट्रेड साइकिल के बारे में कुछ पूछूंगा
तो आप मुझे आंसर करेंगे। डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट्स रिसेशन, upward arrow represents recovery. The situation where in the economy the level of income, employment and output is at its peak position is known as boom, and the situation where the level of income, employment and output in the economy is at its lowest position is known as depression. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिस बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैंने आपको क्या बताया था, जो कंट्री की बैलेंस शीट होती है उस कंट्री की बैलेंस शीट को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस कैसे पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिवील्स परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, shows our capacity to export and compulsion to import। कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट का मतलब है कि हम हमारी कंट्री से कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास में एडिशनल सरप्लस प्रोडक्शन होगा तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और कंपल्शन टू इंपोर्ट का मतलब है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्री में प्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन कंजम्पशन होता है, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और एंड द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कंपल्शन टू इंपोर्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम that is crude oil. Crude oil is not available, natural oil is not available in our country, so we have to import it। फिर उससे डीजल, गैसोलीन, केरोसिन, पेट्रोल वो सब बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। So this is compulsion to import। So balance of payment is also studied under macroeconomics। हम सारे वही पॉइंट पढ़ रहे हैं जो सिग्निफिकेंस बताते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। द फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जब तक हम प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम पॉवर्टी को रिमूव कैसे करेंगे। इफ वी वांट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द इकोनॉमी, फ्रॉम आवर कंट्री, वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, the reasons of poverty, the root cause of the poverty, and then only we will be able to remove it। And similarly environmental pollution is also an problem at an economic level, at a level of an economy as a whole। तो इसे भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही रीड करते हैं, स्टडी करते हैं और उसका यू कैन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। द सिक्स्थ वन इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी अगर बना देती है तो उसके फॉर्मुलेशन का, उसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या प्रोसीजर होगा, क्या वे होगा, दैट इज ऑल्सो स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सो व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, output across different sectors of the economy and the like। ये different sectors में कौन कौन से sectors आते हैं शिल्पा? Sir, two sectors, production sector and household sector। Production sector and household sector। Production sector की जगह और कुछ नाम यूज करें तो? So firm or producers। हाँ नहीं, क्या firm, अच्छा you have given in English only, fine, we can use the firms and the household or the producers and the consumers। okay, these are the like terms। अगर आप फर्म बोलते हैं तो फर्म के साथ में हाउसहोल्ड आना चाहिए, और अगर आप प्रोड्यूसर बोलते हैं प्रोड्यूसर के साथ में कंज्यूमर आना चाहिए। ठीक है, चलिए, और तो क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिसी फॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जब तक आपके पास में मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का डेटा अवेलेबल नहीं होगा, आपकी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, डिफरेंट सेक्टर्स से जो मूवमेंट ऑफ मनी एंड प्रोडक्ट है वो कितना है, जब तक ये चीजें डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, देन यू वोंट बी एबल टू develop our appropriate policy and you won't be able to implement that policy in a appropriate manner। So information relating to macroeconomic variables
is extremely useful in the formulation of policies for the growth and development of the country. So 6 points of significance of macroeconomics we have discussed here. If anybody would like to ask any query, any doubt, you are free to raise the doubt. अभी क्लास में कुछ समय बाकी है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. चलिए तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहला मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ लिखा हुआ है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic problems or the economic issues at the level of an economy as a whole. अगर हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं that represents माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट जब हम at the level of an economy as a whole पूरे कंट्री की बात करते हैं that represents मैक्रो इकोनॉमिक्स. Let us continue few of the points of revision regarding the differentiation between microeconomics and macroeconomics. So the first point we do have is, आपकी स्क्रीन पे आपको जो फर्स्ट पॉइंट नजर आ रहा है दैट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैरसिटी एट द इंडिविजुअल लेवल, व्हाइल मैक्रोइकोनॉमिक्स डज इट एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. माइक्रोइकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करते हैं और मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम पूरी कंट्री की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं. प्रॉब्लम कौन सी वाली? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैरसिटी. Point number 2, microeconomics uses microeconomic variables while macroeconomics uses macroeconomic variables. So what are microeconomic variables? Individual demand and individual supply, consumers demand and consumer producer supply. What are macroeconomic variables? Aggregate demand and aggregate supply. AD and AS represents, ये जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है ना? What does AD mean? AD means aggregate demand. What does AS mean? AS means aggregate supply. Okay. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप क्या स्टडी करते हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में आता है कंज्यूमर्स डिमांड और अरे यार बैड लक. इसको बैक कैसे करना है? है किसी को नॉलेज इसको बैक कैसे करना है? जी लाइन पे है ना आप लोग? बोलते ही नहीं आप लोग, तो ऐसे शांत हो जाते हो जैसे हो ही नहीं लाइन पे. पॉइंट नंबर 3, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स लेसर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, जिसको हम लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन भी कह सकते हैं. एग्रीगेशन का मीनिंग याद है आप लोगों को? एग्रीगेशन का मीनिंग मैंने बताया था टोटल करना, चीजों को ऐड करना आपस में. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत कम चीजों को ऐड करते हैं, सो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. बट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, है ना? मैंने ये लिखवाया था आपको वर्ड, दैट इज इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. पॉइंट नंबर 4 देखिए. In the microeconomics and macroeconomics are based on different set of assumptions. Different set of assumption का मतलब where microeconomics is studied, macroeconomic variables are constant, assumed to be constant. On the other side, when macroeconomics is studied, microeconomic variables are assumed to be constant. Next point of difference is allocation of resources. Allocation of resources is the central issue in microeconomics.
central issue, central problem. While in macroeconomics, the central issue is the determination of national income. This is the central issue. तो simple अगर आपसे question पूछा जाए, what is the central problem in the macroeconomics, your answer should be the central problem of macroeconomics is YEO, that is determination of income, employment and output. Determination of national income, determination of national employment and determination of national output, तीनों related हैं और तीनों किस में determine होते हैं? These are the central problem or central issue of the macroeconomics. लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए what is the central problem in the microeconomics, so the central problem in the microeconomics is allocation of resources. Next point is what is ideal at the micro level, what is important at micro level may not be that much significant at the macro level. वो भी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको? उसे बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स ना. The thing which is important at the micro level may not be that much important at macro level. This is known as micro macro paradox. अगर हम स्कोप की बात करें, so एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम है ना, स्कोप बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, ये स्कोप जो लिखा हुआ है स्कोप को हम रीड कर रहे हैं. Estimation of national income and related aggregates, theory of employment, theory of money, theory of general price level, that is inflationary gap and deflationary gap, role of the government, that is government budget, and exchange rate and balance of payments. These are the points which reveals the scope of macroeconomics. While if we talk about the significance, in the significance we do have certain points, that is it provides, macroeconomics provides description of the economy, it provides as a roadmap of the growth and development of the economy, it provides economic stability, it provides the tools for the economic stability. और economic stability के लिए हमने क्या पढ़े थे? दो वर्ड, एक monetary policy और दूसरा fiscal policy. How economic stability can be achieved in the economy? Through the tools of monetary policy and fiscal policy. Then balance of payment, problems of poverty and environmental pollution, and the policy formulation. So these are the points which reveals the significance of macroeconomics. I hope आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा. कोई डाउट अगर किसी को है तो पूछ सकते हैं. No, sir. अभी कुछ 5 मिनट बचे हैं क्लास में. एक आध मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, एक तो हो ही जाएगा इतनी देर में. चलिए देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, जीडीपी ग्रोथ, ऑल ऑफ दीज. जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? शिल्पा? All of these. पूजा? Yes, sir. All of these. तन्वी? All of these, sir. योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पे लिखा नहीं है क्या? अच्छा वो बाद में आएगा, खैर कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो. चलिए एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं. स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो मैक्रो बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. जल्दी से बताइए जनरल प्राइस लेवल किस में आएगा? ए बी सी डी? Macroeconomics. बाकी भी बोलिए जल्दी से, टाइम आउट हो जाएगा. Yes, sir. Macroeconomics. बोलने में बहुत आप लोग लेजी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. जनरल प्राइस राइज का मीनिंग होता है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को हम जनरल प्राइस राइज बोलते हैं. अगर मैं सिर्फ प्राइस राइज बोलूं तो प्राइस राइज का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल नहीं है. प्राइस राइज मींस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. लेकिन जनरल प्राइस राइज अगर बोला जाता है तो जनरल प्राइस राइज इज अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. ठीक है, बिकॉज जनरल प्राइस राइज रिफर्स टू इन्फ्लेशन. आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. पीडीएफ में बुक का आज ही शेयर कर दूंगा इस क्लास के बाद आप लोगों को. और कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना. आप रिवीजन जरूर से करें. जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उसका मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं, आप में से जो आंसर नहीं कर पाता है तो उसके लिए फिर पनिशमेंट भी होता है मेरे पास में. जैसे कि आज मैंने ट्रेड साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, नाइदर तन्वी आंसर्ड अ सिंगल पॉइंट नॉर पूजा आंसर्ड अ सिंगल पॉइंट. तो दिस इज नॉट अ एक्सेप्टेबल सिचुएशन.
जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है उसमें से दो ही सिचुएशन बनेंगी, या तो आप डाउट पूछिए या फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। जब आप डाउट पूछोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपकी तरफ से मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। सो अगली बार ऐसा कभी ना हो कि बिना रिवीजन के आप लोग आए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।